یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ بتائیے کہ ایک طرف پیس ڈیل ہوئی لبنان کے اندر، کیا ایک دن بھی 24 گھنٹے کے لیے بھی کوئی سیز فائر ہوا ہے؟ غزہ کے اندر ہوا، شرم الشیخ میں سارے لوگ بیٹھے. آپ بتائیے کہ کیا ایک دن ایسا گزرا ہے جبکہ وہ سیز فائر واقعی رہا ہو عملاً؟ روزانہ ایون آپ دیکھیے کہ کل جو ہے وہاں پہ عید الاضحیٰ منایا گیا فلسطین میں، اس دن جو ہے عید الاضحیٰ کی شام کو بھی بمباری کی ہے اسرائیل نے. میں بات کرتا ہوں جو اہم موضوع ہے. خبر دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آ رہی، میں بس 5 منٹ 2-3 منٹ اور لوں گا. خبر یہ آ رہی ہے، آپ دیکھیے ٹیٹ فار ٹیٹ حملوں کے باوجود جیسے کو تیسا، یعنی امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے بھی کیا، دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ پھر شروع. میں نے خود یہ تھمبنیل لگایا کہ جنگ شروع، لیکن دیکھیں باوجود اس کے ایرانی قانون ساز نے مذاکرات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کیا. کئی بار جو باتیں کہی ہیں وہ چیز جو ہے اور پختہ تر ہوتی جا رہی ہے کہ کیا یو ایس جو ہے واقعی سیریس ہے، واقعی وہ پیس چاہتا ہے ریجن کے اندر، یا وہ ایک ولیٹائل جو ہے وہ سب جو ہے سچویشن سینیریو جو بھی ہے ویسا جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھنا چاہتا ہے. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں. بات کروں گا اسرائیل، امریکہ، فلسطین، پورے مڈل ایسٹ کی. جی ہاں، ہر وقت ایک نیا اپڈیٹ سامنے آ رہا ہے اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی جتنی چال تھی، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جتنی سیاسی چال تھی وہ سب فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ تمام تر خراب حالات کے باوجود سیز فائر ہوتا دکھائی دے رہا. میں بات کرتا ہوں جو اہم موضوع ہے. خبر دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آ رہی، میں بس 5 منٹ 2-3 منٹ اور لوں گا. خبر یہ آ رہی ہے، آپ دیکھیے ٹیٹ فار ٹیٹ حملوں کے باوجود جیسے کو تیسا، یعنی امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے بھی کیا، دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ پھر شروع. میں نے خود یہ تھمبنیل لگایا کہ جنگ شروع، لیکن دیکھیں باوجود اس کے ایرانی قانون ساز نے مذاکرات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کیا. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی کا کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے تجاویز کا ایک بڑا حصہ قبول کر لیا گیا ہے. مالکی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ISA نے کہ سر یہ رپورٹ کیے اور اس میں یہ تبصرہ کیا ہے اور اس میں یہ بات کہی ہے. قانون ساز نے مزید کہا، یعنی ممبر پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ صرف تشویش ٹرمپ کی غیر متوقعیت اور وعدوں میں کوتاہی ہے جس کا ہم نے اب تک امریکہ سے مشاہدہ کیا ہے. یعنی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر اچانک ہو جاتا ہے، پھر حملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو بے اعتمادی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، یہی ان کا کہنا ہے. اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب بات چیت فائنل اسٹیج پہ تو اٹیک، اور اٹیک بھی الگ الگ بہانوں سے کہ صاحب مجھے خطرہ تھا مجھ پہ. ارے بھائی سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز طے ہو گئی، آپ اسٹریٹ آف ہرمز کراس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کریں گے تو حملہ ہوگا، کیونکہ IRGC نے پہلے کہا. تو بھائی پہلے سب کچھ طے ہو جائے نا تو اسٹریٹ آف ہرمز وہ خالی کر دیں گے، ناکہ بندی آپ ختم کر دیجیے. لیکن اس سے پہلے کیا ضرورت ہے یہ چھیڑ چھاڑ کے اور یہ دھمکی کہ صاحب ماننا پڑے گا آپ کو؟ کیسے ماننا پڑے گا؟ اگر ایران کو یہ سب ماننا ہی ہوتا تو پھر اتنی جنگ کیوں، اتنی جانیں کیوں دیتے، اتنی قربانی کیوں؟ اور یہ 3-4 کروڑ لوگ یہ سائن کیوں کرتے لڑنے مرنے کے لیے؟ کیا یہ بات امریکہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیوں ایران اتنا سب کچھ کرتا اور 47 سال سے پابندی کس بات کی؟ اگر ایران سب کچھ مان ہی لیتا تو مان ہی لیتا، پھر تو ایسے نہیں ہوتا. اور یہ تو بالکل ویسے ہی ہے، یہ مان گئے تو وہ مان گئے تو وہ مان، تو کہاں تک جائے گا آدمی؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں چلتا. دنیا کو آپ اپنی انگلیوں میں نہیں گھما سکتے.
अब एक और रिपोर्ट, व्हाइट हाउस एक्सियोस की इब्तदाई रिपोर्ट की तस्दीक कर रहा है, एक मुफाहमत की याददाश्त, और ये कि सदर ने अभी तक इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। ये रिपोर्ट आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इस पे दस्तखत नहीं किए, लेकिन बातचीत तकरीबन फाइनल हो गई। ये तो रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 60 दिन की जंगबंदी है कि अपनाए हुर्मुज दोबारा खुल जाएगा। ईरान ने वादा किया है कि वो 30 दिन के अंदर तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर देगा और ईरान जौहरी हथियार न बनाने का अहद करेगा। अमेरिका पाबंदियों में नरमी और ईरानी असासों को मुंजमद करने पर बात करेगा, यानी उसको फ्री करने की बात करेगा। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को मतवाजी उठाना पड़ेगा, यानी उसी वक्त जैसे ही स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलेगा अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा और फिर वो अफसूदा यूरेनियम यानी इनरिच यूरेनियम से छुटकारा हासिल करने के बारे में बातचीत करेंगे। तो इतना तय हो गया है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स मैं आप खिदमत पेश करूंगा, लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर मेरा दिल नहीं लगता है कि मैं और ज्यादा बात करूं। और मेरे बड़े खास मेहमान जो यहाँ पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई, आपको, जनाब फिरोज बख्श साहब आपको, और जितने नाजरीन इस वक्त जुड़े हैं सबको जो है ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। जहाँ तक बात है ईरान की, और जो लेटेस्ट जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और बहुत सारी जो है मालूमात आपने दी हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर जो है अभी जहाँ तक एनालिसिस की बात है तो उसके अंदर यही है कि ये मतलब ये किस तरह का एक सिनेरियो जो है डेवलप हो रहा है। और अब तक हमने कई बार जो बातें कही हैं वो चीज़ जो है और पुख्तातर होती जा रही है कि क्या यूएस जो है वाकई सीरियस है, वाकई वो पीस चाहता है रीजन के अंदर, या वो एक वोलेटाइल जो है वो सब जो है सिचुएशन सिनेरियो जो भी है वैसा जो है वो क्रिएट करके रखना चाहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि अगर बातचीत चल रही है, हमेशा से ये एक वतीरा बन गया है यूएस का कि जब भी बातचीत होती है, जब भी किसी माहदे पर पहुंचने की बात होती है, तो अब तक जो है बहुत सारे तज्जिया निगार, हम लोग भी कई बार ये जो है कहकर जो है बताते थे कि भाई इसराइल चाहता है, नेतन्याहू सीरियस नहीं है, इसलिए जो है बातचीत नाकाम हो जाती है। भाई कब तक हम सिर्फ नेतन्याहू को, इसराइल को ब्लेम करते रहेंगे? हम कब तक उनके ऊपर जो है इस तरह से उंगलियां उठाते रहेंगे कि नहीं भाई सिर्फ नेतन्याहू की वजह से या सिर्फ इसराइल की वजह से ऐसा हो रहा है? अब आप बताइए कि जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, लास्ट वीक भी हुआ था और अभी 24 घंटे पहले, तो ईरान के ऊपर जितने स्ट्राइक वगैरह किए यूएस ने और उसको जिस तरह से फाइल किया, और उसके बाद रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान ने जो यूएई में, कुवैत वगैरह में किया है, तो आप बताइए कि भाई ये सब क्या है? हज के दौरान जो है इस तरह से एक पर्टिकुलर कंट्री को इंस्टिगेट करना, और उसके बाद जो है जबकि कई बार जो है सऊदी अरब ने ख़ास तौर से जो है अमेरिका से बोला था कि भाई इस वक्त हज का है, लाखों लोग इस वक्त मक्का में हैं, मदीने में हैं, और उसमें जो है मतलब पूरे अरब खित्ते के अंदर। तो अब जो है उस दौरान जो है, और पूरी दुनिया भर के हैं मुसलमान वहाँ पे, तो उस दौरान जंग न छिड़ी जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका को इससे कोई परवाह नहीं है कि कितने लाख लोग मारे जाएं, कितने वो। भाई जिस यूएस ने जापान के अंदर न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया हो और जिसमें लाखों लोग मारे गए हों, तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है इनकी, और इसको सिर्फ ज़ायनिज़्म में और उसमें जो है एक उसके सिर्फ लिमिटेशंस वगैरह में रखना कि भाई नहीं इनकी लिमिट सिर्फ इतनी है, इनके हदूद ये हैं, तो ये सब बात नहीं है। ये लोग जो है अपने आप को इन्होंने एक तरह से पूरे के पूरे जो है ज़ायनिज़्म में और जो है बहुत सारे उसके अंदर ये लोग इतने नीचे तक किए गए हैं कि एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है इनकी, और ये नाजियों से भी कहीं ज़्यादा शफाक साबित हो रहे हैं पूरी दुनिया के लिए जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप बताइए कि एक तरफ पीस डील हुई लेबनान के अंदर, क्या एक दिन भी 24 घंटे के लिए भी कोई सीज़ फायर हुआ है? गज़ा के अंदर हुआ, शर्म उल शेख में सारे लोग बैठे। आप बताइए कि क्या एक दिन ऐसा गुजरा है जबकि वो सीज़ फायर वाकई रहा हो अमलन? रोज़ाना
इवन आप देखिए कि कल जो है वहां पे ईद उल अजहा मनाया गया फलस्तीन में, उस दिन जो है ईद उल अजहा की शाम को भी बमबारी की है इसराइल ने। बताइए आप। तो सूरत हाल ये है कि आपको किसी दूसरे मजहब के और उनके त्योहारों का भी पासो लिहाज नहीं है। तो इस वक्त हम जिन इंसानी अक़दार की बात करते हैं, न तो अमेरिका, न वेस्ट और न ही जो है इसराइल वगैरह ये सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। अब दुनिया बिल्कुल अखलाकी पस्ती की तरफ न सिर्फ रवां दवा है, बल्कि वो उसमें फख्र महसूस कर रही है कि हम अगर निचले स्तर पर जा रहे हैं, इंसानी कदरों को पामाल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बाइसे वक़ार है। तो जब इस तरह की एक माइंड सेट जो है नेतन्याहू या ट्रंप या फिर इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों को उसमें आ जाए, तो फिर उसका जो है नतीजा निकलता यही है कि फिर आप ब्लड शेड को और बहुत ज़्यादा जो है उसका एक सिलसिला शुरू होगा। आज आप देखिए, ईरान के हैं एक अली अकबर विलायती, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो साबिक वजीर खारजा हैं और जो ईरान के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, वो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। उनका एक बयान वायरल हुआ है आज। विलायती साहब ने वाज़ेह तौर पर बुक पर जो बातें आई हैं उनकी, उन्होंने बोला है कि ट्रंप से पहले भी बहुत सारे लोग हुए, अलेक्जेंडर भी था यानी सिकंदर, और चंगेज खां भी हुआ, और भी बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये वो लोग हैं कि जब ये ईरान से नबरदाजमा हुए, महाजारा हुए, तो उसके बाद ईरान के जो है उसने इनको मलियामेट कर दिया, या फिर ये लोग पूरे हस्ती के अंदर विलेन होकर के रह गए। तो कुल मिलाकर यह है कि क्या जो है नेतन्याहू और ट्रंप उन्हीं चंगेज खां, उन्हीं हलाकू और उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग वो हैं जो इंसानी तहजीब, इंसानी तमद्दुन ये पूरे के पूरे मिटा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ जंग रहे, पूरी दुनिया के अंदर एक साहूकार वाला जो है निज़ाम कायम हो, और पूरी दुनिया को एक कैपिटलिस्ट जो है उसकी जो है मोनोपोली रहे, सुप्रीमेसी रहे, सिर्फ धनवान लोगों को जीने का हक रहे। तो सवाल यह है कि भाई वो जो मार्क्स की जो है दास कैपिटल के अंदर वो जो दी है थ्योरी उसने, कि भाई दोज हु हैव नॉट, तो क्या इस तरह के दुनिया के अंदर ये जो डिवीजन करना चाहते हैं, क्या ये कामयाब होंगे? तो अभी जो है वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अभी भी ईरान एक डिटरेंट है, और वो पूरे का पूरा डिटरेंस शो कर रहा है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जो बहुत सारी बातें, चाहे अल जजीरा चला रहा हो, रॉयटर चला रहा हो, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह कर रहा हो, या फिर भारतीय चैनल, मैं उन पर उस वक्त तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक असल मुआहदा वो पूरे के पूरे मंजर आम पर नहीं आता। इस तरह की अफवाहें कि भाई एनरिच्ड यूरेनियम ईरान चाइना को दे देगा, भाई चाइना को क्यों देगा? इतने सैकड़ों वैज्ञानिक मारे गए ईरान के, क्या यही दिन देखने के लिए मारे गए थे कि वो यूरेनियम अफजूदा करें, अपनी जानों के नजराने पेश करें, और उसके बाद जो है अगर कुछ जो है कन्फ्लिक्ट हो तो ईरान वो सारा एनरिच्ड यूरेनियम किसी दूसरे देश के हवाले कर दे? क्या इसके लिए दी थी उन्होंने अपनी जानें? क्या इतने सारे वैज्ञानिक, बड़े बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर, क्या इसलिए मारे गए? तो ये जो है मुझे लगता नहीं है कि ईरान इस पर बात करेगा। ईरान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इस्माइल बकाई, जिनको इस्माइल बघाई और बाघी, मतलब आप सोचिए कि ये इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया जिनको नाम तक लेने की तमीज नहीं है, ये लोग जो है बताते हैं कि भाई हम बता रहे हैं कि दुनिया में ये होने जा रहा है, ये सब फ्रॉड है। इस्माइल बकाई का जो स्पोक्स पर्सन है ईरान की वजारत खारजा के, उनका वाज़ेह बयान है कि न्यूक्लियर इशू पे ये हमारे जो है पॉइंट ऑफ जो है उस पर ये हमारे डायलॉग टेबल में है ही नहीं, हम इस पर बातचीत करेंगे ही नहीं। तो दूसरी बात यह है कि फिर जो है क्या होगा? अमेरिका चाहता है ईरान मिसाइल प्रोग्राम रोके, क्यों भाई? लीबिया ने भी रोका था, लीबिया भी अपने न्यूक्लियर उसको जो है प्रोग्राम को तर्क करने पर राजी हो गया था, एग्रीमेंट साइन किया। जैसे ही अमेरिका को मालूम हुआ कि अब ये हमारे सरनिगू हो गया है, लीबिया की हालत क्या हुई, यूक्रेन देख रहे हैं आप। तो ये सारी की सारी मिसालें मौजूद हैं। जिस रोज अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे और उस पे ईरान समझौता कर लेगा, समझ लीजिए ईरान का जवाल शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के लोग ये सारी चीजें देख नहीं रहे हैं कि उनके आसपास क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारे का सारा एक जो है मिस इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया क्रिएट करके फैला रहा है। किसी भी चैनल पर वो चाहे कितना ही क्रेडिबल हो, मुझे लगता है जब तक कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं आती,
معاہدہ بالکل پوری طرح منظر عام پر نہیں آتا، صرف مسودے کے نام پر اس طرح کی ڈائیلاگ، اس طرح کی بات چیت، مس انفارمیشن بند ہونا چاہیے۔ جی ممتاز بھائی۔